अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इट इज रिडिकुलस इंडियन शेम्स पाकिस्तान एट यूएनए एक्सपोज पीएम शहबाज शरीफ। तो पीएम शहबाज शरीफ ने काफ़ी हिंदुस्तान के लिए बोला है, कश्मीर के मुद्दों पे बोला है, तो उसका जवाब भी दिया गया है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The real truth is that Pakistan covets our territory, has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. The nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now, dare speak about intolerances and phobias. Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये तो भाई
मैं कहता हूँ कुत्ते ही हो गई है भाई साहब, ऐसी कोई कुत्ते कुत्ते नहीं, क्या भाई, कुत्ते ये भाई साहब सारे गिनती कर दी भाई साहब। गिनती कर दी सारी। जो सुभाष शरीफ ने बोला है, सुभाष शरीफ ने थोड़ा सा बोला नहीं है अच्छा, ये प्लेटफॉर्म कश्मीर का मुद्दा हल कर सकता है जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं और इंडिया की तरफ से नहीं 76 सालों में ये इदारा कर सकता है। नहीं कर इस सकता, इदारा- उसका तो फिर मामला- वहाँ पर जो मर्जी कर ले, कुत्ते खानी हो उसका इस ना इदारे का हो। इस इदारे का एक मकसद है, साल बाद ये इदारा ये असेंबली होती है 15-20 दिन की, सारे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं वो बस अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, अच्छा। अपने मुल्क की जो परेशानियां जो हमें तकलीफें ये वो निकालते हैं। इससे सिर्फ बस। एक चीज होती है, हफ्ता 10 दिन अमेरिका फिर सिर्फ और वापस सिर्फ मीडिया को, मीडिया की कवरेज मिलती है, बस। बस। मीडिया की न्यूज चलती है, बाकी कुछ अब फायदा नहीं। इंडिया ने बात बोला, ये- पाकिस्तान ने बोला ये पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, इंडियन वापस चले जाएंगे, बस अपना अपना वही काम बस। और ये सारी चीजें पूरी दुनिया का अमेरिका को किसी चीज की भूल है भाई कि पाकिस्तान में किसकी सरकार चलती है, क्या हाँ, पाकिस्तान जो बताया जा रहा था उसामा बिन लादेन उसामा बिन रखने वाला लादेन- कंट्री, वो कौन, वो किसको मिलिट्री के अमेरिका को अंदर पता चलने है वाला क्या? कंट्री, हाँ, मतलब किसी दुनिया को- को भूल है प्यारी इनको बहन की। इनको को भूल है, इनको को भूल है। कह रहा है लिप के रख देता है की मैं लिप के रखे मैं भाई कह रहा हूँ कि भाई सारी दुनिया को पता ही है सारी चीजें। अच्छा मुझे एक ये भी लगता है जितने उधर ये फॉरेनर ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये जो भी ऑफिसर गए थे और जनरल सेक्रेटरी के जितने मेंबर वो अमेरिकन हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है वो सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जब लेकिन इस चीजें वगैरह भाई clear ये जो करने के लिए बातें, बैठते हैं। ये जो लड़की ने बातें बोली हैं, मैं कहता पूरी रेपुटेशन भाई साहब खाक में मिल जाती है कंट्री की। हमारे पास जो सबसे यार रेपुटेशन तो तब मिले कि आपने एक शराफत का लिबादा ओढ़ रखा हो और कोई आपको अंदर से आप भाई साहब बारूद लेकर घूम रहे हो और आपका वो शराफत का लिबादा कोई हटा दे। पहले ही दुनिया को आपकी सारी जानकारियां हैं, या तो बताओ कि नहीं है। यूनाइटेड नेशन में एक काम होता है नहीं। यूनाइटेड अच्छा बताओ, मैं बताता हूँ। दुनिया में कोई एक ऐसा कंट्री बता दो जिसको पाकिस्तान जो खबर नहीं है, आम पता लोग नहीं होते है। हैं जिनको नहीं भी पता। अच्छा, अब अगर कोई बंदा तो हम लोग ये पाकिस्तान चीज़ इंडिया सुन से ले होंगे। कि भाई साहब पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म जो है वो करता है, क्रॉस अच्छा। बॉर्डर टेररिज्म करता है, अच्छा। नशे का कारोबार करता है। तो वो लोग ये नहीं सुन रहे थे कि जब पाकिस्तान का अपना वजीर आजम बात कर रहा था तो वो कह रहा था कि हमारे कंट्री में भी धमाके होते हैं, अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी आती है, हमारे कंट्री में भी वहां से भी तो दोनों कंट्रियों के लिए प्रॉब्लम तो सेम हुई ना यार यूनाइटेड एक और वाली बात हो कि अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द। तारे भाई ये यूनाइटेड नेशन है ना, आप इसकी जितनी भी देख लें स्पीच इसमें सिर्फ एक चीज होता है, इल्जाम तलाशी होती है, हल कोई नहीं, बस सिंपल। अगर हाल होता तो भाई रशिया यूक्रेन की वार रुक जाती, इजराइल गाजा की वार रुक जाती, वहां भी तो मासूम लोग मर रहे हैं ना। मुझे तो लगता है अमेरिका ये अपने मुल्क में हर दफा कराता है, सिर्फ वोट के बाद शायद मुल्कों के व्यू देखता हो प्रेसिडेंट इनकी चीजों की, और कुछ भी नहीं, हाल मुल्क कोई नहीं है, परखता है कि किस परखता है, बस। इनकी नब्जें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। किसी की मुझे खींचनी पड़ी तो खींच लो, ऐसे ही है। वो खामियां पकड़ता है, अगर किसी चीज की खामी ना पता हो तो वो जो उसके खिलाफ दूसरा कंट्री होगा ना वो सारी बता देगा कि इसमें ये जगह हाँ, ये बोल लेना अपने मन की भड़ास तो हाँ, निकाल तो जिस लेना। तरह इंडिया ने बताई है कि भाई साहब ये नशे का कारोबार भी करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी करते ओ हैं। यार नशे का ये भी कारोबार हो रहा है। तारक साहब मान लिया, ये हमारे जो F-16 है वो जाके नशा फेंक करते हैं वहां पर किधर? इंडिया में, नहीं, वो क्रॉस बॉर्डर, छोटे ड्रोनों से चला जाता है, तो वो इंडिया वाले नहीं पकड़ सकते उनको, पकड़ते हैं। ऐसे तो कहते हैं। नहीं ये झूठ है, ये टेक्नोलॉजी है। सबसे ज्यादा नशे तो और हो सकता है भाई साहब इसमें उनकी इंडियन आर्मी शामिल हो जो क्रॉस बॉर्डर ये सारा कुछ जाने दे रही है, आप बंदे भी गुजरने देते अच्छा मैं आपको एक चीज नशे भी बताऊं, गुजरने मैं देते आपको हैं। एक चीज बताऊं, फिर आप कहते हैं हम लंबे चले जाते हो। जितना भी जिस मुल्क में भी नशा आता है क्रॉस बॉर्डर अपनी आर्मी ले 150 करोड़, उसमें नेवी भी शामिल है, 150 आर्मी भी करोड़ की शामिल है। आबादी है, 150 करोड़ आबादी जी। है, ऐसे ही है ना। तो इनकी रेशो चेक करना जितना जैसे इधर हमारे अफीम चरस शराब, तो पूरे इंडिया को हम पाकिस्तान ही नशे सप्लाई करता है जी हाँ, मंत्र बताओ
हमाम खुद ये जो बनाते काले बैठे हुए हैं हैं वो दुनिया में समंदर के एक में नहीं बेचते दुनिया में नशा। सबसे ज्यादा नशा में तब इस्तेमाल होता है, वो भी कहाँ से आता है? अब वो भी पाकिस्तान भेज देता है उनको। वो पाकिस्तान से जाता है अमेरिका में, अच्छा। बांग्लादेश, वो इधर से आता है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर आगे जाता है अफगानिस्तान। अब डायरेक्ट बस सर जितने मुल्क है ना उनके बॉर्डर पे जो स्मगलिंग होती है ना अलग से ये थे उनकी आर्मी इधर नहीं करती है। कोई भी हाँ, कोई मुल्क। मानने नहीं कोई भी आता। मुल्क। इधर कोई- नहीं कोई- करता, किसी- कस्टम कोई वाले भी करते मुल्क हो। कस्टम वाले भी मिले होते हैं। बंदरगाह तो पर वही- कोई नेवी के ऑफिसर हो और गए। सबसे ज्यादा भाई साहब ये समंदर के रास्ते आता है नशा। जी ये बॉर्डर से अच्छा। जो कोई एक आधा थोड़ा सा थैला चला गया, थोड़ा सा ये वो ट्रकों हाँ, पे ज्यादा ट्रक आते, बिल्कुल वो बड़े कंटेनर से अच्छा, आते अब ये हैं। कस्टमर वो वहाँ से ऑफिसर या जाते हैं। नेवी ऑफिसर उनको कोई नहीं पता। सब पता आता है भाई, वो पैसे अच्छा लेते हैं कि अब जो मेरी बात सुनो, इनका बिहार यूपी वो उधर बहुत ज्यादा नशा होता है, वो जंगलात में से आगे पीछे पहाड़ी इलाकों से निकल कर वहाँ इनकी बहुत ज्यादा तादाद में आर्मी और इंडियन रेंजर तैनात है। ओ भाई उनको साहब, पता- सारों को पंजाब जो पता है, पंजाब गाढ़ है नशे का। पाकिस्तान और इंडियन पंजाब में घर घर में है भाई नशा, साहब। ऐसे ही। दो नशेड़ी फिर रहे हैं हर घर में। लेकिन भाई साहब ये मुझे ये लगता है हम दोनों की सिचुएशन सेम है, हम इल्जाम लेकिन तराशी अगर करते भाई हैं। साहब बात कर रहे हैं बस। लड़की की, तो भाई साहब जो बात है कि ये सच है भाई, लेकिन ये पोल खोली है अच्छे से। अच्छा हमारे लिए सच है, उनके लिए भी यही इम्प्लीमेंट होता है, उधर भी यही सिचुएशन नशा। वो हमारी तरफ नशा बेचते हैं ना। चलो हमारी तरफ नहीं बेचते तो उनके जो सिक्योरिटी हाँ, पैसे तो उसकी मार रहे हैं, उनकी तरफ से पैसे आते हैं। फ्री में दे देते चलें जी ठीक है, मैं अपनी जागरूकता का कम वो एक वीडियो देखी थी जिसमें नेवी ने पकड़े थे पाकिस्तानी पाकिस्तान नेवी ने पकड़े। इंडियन नेवी ने पकड़े थे वो पाकिस्तानी बोट वाले थे, वही वो नशा लेकर जा रहे थे। अच्छा वो तकरीबन हीरोइन 20-22 जी। लोग थे। नहीं 2-3 लोग थे। नहीं नहीं 2-3 तो नहीं, ज्यादा लोग थे भाई। नहीं वो नहीं, वो वो 2-3 फिर लोग बच गए थे। उन्होंने कुछ फेंक दिया और कुछ जो है वो 120 किलो को कितना था वो। बता तो इतना उन्होंने पकड़ लिया, बाकी उन्होंने समंदर में फेंक दिया। तो वो भी फेंक देते, फिर साफ सफाफ जाते उनके हत्थे चढ़ते, लेकिन निशानी लगा देते कि भाई साहब यहाँ फेंके, कल को मैं निकाल सकूँ। चलें जी ठीक है, हाँ हाँ निशानी लगा लेते हैं। चलें जी ठीक है, मैं अपने राजपूताई का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।